हेलो। मुजीद, यस सर। और कोई आएगा? हाँ, और कोई ज्वाइन करेगा? कॉल करते हैं सर। पूछो एक बार, सबको मैसेज करो ज्वाइन करेगा। स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ tables, the title of experiment is main type of experiment available. We perform the test in the building material construction. First one is the fineness of cement, and then consistency test for the cement, determination of setting time, soundness test, specific gravity of cement, determine compressive strength of cement. Then now this cement test is many types of test cement. Then solve sieve analysis, coarse aggregate and fine aggregate. Means sieve analysis किसको बोलते हैं? sieve analysis, coarse aggregate or fine aggregate. So there are two types of aggregate. Is a fine and coarse. So coarse is the greater than 4.75 mm and below 4.75 mm is the fine aggregate. This is sand. Okay, and above the coarse aggregate is 4.75 mm, greater than. 4.75 mm से बड़ा है. This is the coarse aggregate. This is the gravel. Okay, and then now you test perform specific gravity and water absorption of fine aggregate. Then a specific gravity water absorption of a coarse aggregates, bulking of sand, measurement of workability of concrete by slump cone test. Okay, this is the find the workability of concrete with the help of the slump test. Then now workability is a compaction factor test. Okay, there are two types of tests in this laboratory, but one is the third one is the VB test. VB test are the find the workability of concrete. Then now the test for determination of compressive strength of concrete, the help of the सुबह डिस्कस किए थे ना हम लोग
कि कॉम्प्रेसिव कैसे फाइंड करता है, दिस ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट, दिस इज M15. Okay, the M is the mixture and 50 is the compressive strength of concrete after 28 days. हम लोग ये क्यूब कास्ट करते हैं, देन आफ्टर क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, किसमें, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेचिंग मशीन में. जो मशीन जो CTM होता है उसमें हम लोग उसमें इसको ब्रेक करते हैं, देन यू फाइंड द गेट द रिजल्ट आफ्टर 28 डेज. हम लोग क्या करते हैं, 28 डेज क्यूब को हम लोग वाटर में रखते हैं और देन इसको बाद हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, then you find the compressive strength of concrete. Then now second one is the determine flexural strength of concrete. So how to find the flexural strength? The flexural the help of the beam. Suppose you cast the beam, okay, suppose you cast the beam, and then how to is the apply the load, and then apply and load in two places, okay. Then now the breaking point, this is the strength of flexural strength of concrete. Okay, then last one is a test of determination of split test tensile strength of concrete. जो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कंक्रीट का, तो इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ पे होता है बीम में, कोई आइडिया है? बीम में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ पे होता है, कहाँ पे इस पे अप्लाई लगता है होता है? This is the upper part is the compressive strength and bottom part is the tensile strength. Okay, this is the strength of the beam. Last is test on bricks. This is the very important how to test. हम लोग टेस्ट इसका एक फील्ड में टेस्ट भी करते हैं, एक लैब में भी करते हैं. ओके, तो फील्ड टेस्ट इज अ वेरी नॉर्मल टेस्ट. सपोज हार्डनेस टेस्ट, ओके, then color. This type of test is in the field test. Okay, then now we start from the first. Determination of fineness of cement by dry sieving. How to find the fineness of cement by the dry sieving. Dry sieving is sukha. Okay, then first is the experiment number 1. You find the fineness of cement. How to perform this the experiment. So this for theory part, this is the how what is the fineness of cement. The cement is obtained by grading various raw materials after calcination. The degree of which cement is ground to a smaller and a smaller particles is called fineness of cement. This is a very fine. हमने एक बार क्लास में डिस्कस किया तुम लोग से कि दिस इज अ ग्रेड ऑफ सीमेंट. सीमेंट का ग्रेड क्या होता है, 33 एंड 43 एंड 53. इसमें सबसे ज्यादा फाइन कौन सा सीमेंट है, कोई बताएगा? ये तीनों ग्रेड का जो सीमेंट है 33, 43 एंड 53, which cement, which type of cement is very fine? Anyone? not 53. 53 कैसे फाइन होगा? अभी हम लोग जो ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं वो कौन सा ग्रेड का यूज करते हैं? सर आप ही. हाँ, कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज करते हो? ओपीसी. अगर ओपीसी यूज करते हैं तो ऐसे तो पीएससी बहुत सारा सीमेंट है, पीपीसी. ओपीसी और पीपीसी हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक ओपीसी यूज करते हैं जनरली, एक पीपीसी और पीएससी. अभी तो बहुत सीमेंट, अभी जो भी नॉर्मली जो सीमेंट आ रहा है ओपीसी तो हम लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं. व्हाई, रीजन क्या है ओपीसी कम यूज करने का? उसमें बहुत दो रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको हम लोग ओपीसी क्यों यूज नहीं कर, मतलब ज्यादा यूज नहीं करते हैं. ओपीसी बहुत स्पेसिफिक प्लेसेस पे यूज करते हैं. जो अभी ओपीसी करंट में यूज हो रहा है वो है 43 तुम्हारा.
एक और पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टन स्लैग सीमेंट। तो पीपीसी भी ज्यादा यूज हो रहा है हम लोग का, क्योंकि ओपीसी यूज इसलिए नहीं करते हैं, ओपीसी ज्यादा, क्योंकि ओपीसी में हम लोग उसमें एडमिक्सर मिक्स नहीं करते हैं। अगर तुम ओपीसी यूज करते हो तो उसमें एडमिक्सर मिक्स नहीं करना है, पीपीसी यूज कर रहे हो तो उसमें एडमिक्सर मिक्स कर सकते हो। ओके, क्योंकि ओपीसी में जनरली एडमिक्सर यूज नहीं करते हैं हम लोग। और जो तुम्हारा पीपीसी है इसमें हम लोग एडमिक्सर यूज करते हैं, जैसे इंक्रीज द सेटिंग टाइम। बट ओपीसी में क्या है कि जैसे नॉर्मल सीमेंट, तो तुम उसको क्या कर, तुरंत उसको हम लोग को मिक्स करना है, देन उसको तुरंत कास्ट करना है। जैसे मान लो ओपीसी यूज करते हैं हम लोग किसमें, तुम्हारा ब्लास्ट फर्नेस, जो पावर प्लांट में तो ब्लास्ट फर्नेस बनता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ हीटिंग रेजिस्टेंस ज्यादा हो वहां पे हम लोग ओपीसी यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं करना पड़ता है। जहाँ पे हीटिंग एरिया ज्यादा होगा, वहाँ ब्लास्ट फर्नेस जहाँ ज्यादा वो होगा हीट, वहां पे हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे केमिकल्स, इसलिए हम लोग OPC को ज्यादा। और सर पीपीसी में सर हम लोग समुद्र में यूज करते हैं ना, हाँ, पोर्टलैंड पीपीसी हो गया, पोजोलाना सीमेंट हाँ में। पीपीसी हो गया, पीएससी हो गया, जो भी जनरली पीपीसी इसलिए यूज करते हैं समुद्र उस सब में सेटिंग टाइम उसको इंक्रीज करने के लिए। कोई क्विक सेटिंग सीमेंट आता है, या किसी को सेटिंग टाइम को डिक्रीज करना है, इसलिए लोग पीपीसी की यूज करते हैं। बट ओपीसी यूज हम लोग जनरली करते हैं जहाँ पे ज्यादा हीट ज्यादा हो, क्योंकि वहां पे अगर यूज करेंगे हम लोग तुम्हारा ओपीसी में, तो रीजन ये है कि वहां पे तो ज्यादा केमिकल यूज हो नहीं पाएगा ओपीसी में। और ब्लास्ट फर्नेस जहाँ पे जहाँ चिमनी हो, जैसे हो गया जहाँ चिमनी कास्ट करते हैं वहां भी हम लोग ओपीसी का ही यूज करते हैं जनरली, क्योंकि वो भी ज्यादा वहाँ कोल बर्न होता है, तो वहां पे केमिकल यूज नहीं करते हैं। ओपीसी का इतना वो दिखाया जाता है कि वो साइड पे जाए और वहां पे तुरंत कास्ट करना। ओके, so this is the finest particle. The fineness of cement has an important role in rate of hydration, hence of the rate of gain strain, also rate of evolution of heat. Okay, तो fineness of cement हम लोग find करते हैं. This is a objective determination of fineness of cement of drying sheet. This is a एक तुम्हारा हो गया experiment number 1. Apparatus used. This is the micron sieve. Okay, and the weighing balance, gauging toil and brush. It is 4 types of apparatus used for the fineness of cement. Material use the OPC or nutty Portland cement, and a procedure how to perform this type of test. The first step, you weight accurate 100 gram of cement to the nearest 0.0 gram and place it is on the standard 90 micron ISC. इज द फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम सीमेंट हम लोग वेट कर लेंगे और द स्टैंडर्ड जो 90 माइक्रोस उसको पास करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप, ब्रेक डाउन इन एयर सेट लम्प्स इन द सीमेंट सैंपल विथ फिंगर्स। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, उसको स्लम्प जो सीमेंट हम लोग उसको सीव करेंगे, उसको फिंगर के थ्रू उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, एंड देन थर्ड स्टेप इज एगिटेट द सीव बाय गिविंग swelling, planetary and linear movement for a period of 10 minutes or until no more fine material passes through it. फिर क्या करोगे, सीव को उसको 10 मिनट्स के लिए जो भी हमारा है इसको पेड मूवमेंट, इसका जो सीमेंट का मूवमेंट होगा और 10 मिनट तक उसको हम लोग को उसको लिनियरली एकदम एक लाइन से उसको मूवमेंट करना है, उसको ऐसे जो फिंगर से उसको हम लोग को मूव करते रहना है। Then fourth step, collect the residue left on the sieve. Okay, using brush if necessary and wet the residue. जो उसके बाद हमारा जो सीव के बाद जो लेफ्ट बचता है उसको हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। जो अपर पार्ट में जो भी थोड़ा सा फाइन या उसका जो कोर्स पार्टिकल बचता है उसको वेट करेंगे। Then now fifth step, express the residue as a percentage of the quantity first place of the sieve to the nearest 0.1%.
तो कितना हम लोग को बचता है, एंड रिपीट द होल प्रोसीजर 2 मोर टाइम्स ईच यूजिंग फेस 100 ग्राम सैंपल। जो हम लोग फिर इसको 2 बार 3 बार इसको हम लोग रिपीट करेंगे, देन 3 बार इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज एवरेज निकालेंगे कितना इसका हमारा फाइन हुआ। So this is the effective residue percentage of quantity first placed on the CU to the nearest 0.1%। अगर इतना 0.1 पर नियरेस्ट आता है तो तुम्हारा सही है। तो इसी को हम लोग 2 बार 3 बार इसको इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, 100 ग्राम वेट करेंगे, फिर उसको हम लोग 90 माइक्रोन से पास करके सीमेंट को, देन फिर उसको हम लोग ब्रेक डाउन, उसको फिंगर से उसको ब्रेक करेंगे, देन उसको 10 मिनट्स के लिए लीनियर मोमेंट में स्यूप करेंगे, देन जो कलेक्ट उसका रेसिड्यू उसका वेट कर लेंगे, तो लास्टली उसका परसेंटेज निकालेंगे। इसी को 3 बार 4 बार उसको हम लोग करेंगे, तो 4 का हम लोग करेंगे तो 4 टाइम्स उसको हम लोग find the 4 times of the average value, you get the fineness of cement। ओके, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सीरियल नंबर कैसे ऑब्जर्व करना है, दिस इज हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। फर्स्ट सैंपल लेंगे, वेट ऑफ द सैंपल टेकन इन W, वेट ऑफ द रेसिड्यू आर इन ग्राम, हम लोग वेट करेंगे जो सैंपल लिया, सपोज 100 ग्राम, फिर इसका जो हम लोग का माइक्रोन से जो बचेगा रेसिड्यू उसका वेट करेंगे, देन परसेंटेज R अपॉन W, ओके, इनटू 100 इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू। ऐसे हम लोग को 3 सैंपल को लेना है, देन यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, देन सेकेंड बार फिर 100 ग्राम्स, फिर अगेन वैसे रिपीट करेंगे, देन एवरेज वैल्यू गेटिंग द परसेंटेज रिड्यूस सीमेंट सैंपल बाय ड्राइंग शीट परसेंटेज। कंक्लूजन में क्या आता है तुम्हारा, द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट कंटेन लेस देन और मोर देन 10% by weight of material coarser than 90 micron C, therefore it is satisfied not satisfied the criteria of specified by IS code। तो हम लोग कितना परसेंट आता है, तो इसको तुम लोग कर सकते हो परफॉर्म। बताओ, इसको परफॉर्म करने कोई प्रॉब्लम है, इज वेरी इजी, ज्यादा कुछ है नहीं। पहले हम लोग को 100 ग्राम सैंपल लेना है, उसको 90 माइक्रोन से इसको शीव कर लेना है, देन जो सीमेंट बचता है उसको हम लोग को फिंगर विद फिंगर सीमेंट को ब्रेक करना है, एंड देन थर्ड स्टेप द लिनियर मूवमेंट, फोर्थ स्टेप इन द कलेक्ट रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द CU, तो उसको हम लोग फिर सीव करेंगे, जो लेफ्ट बचेगा उसका वेट कर लेंगे, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देन यू फाइंड द रिजल्ट R upon W into 100। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर वो चैट किसका है सर, मतलब वो जो चार्ट है ए, ये उसके ऊपर वाला, रिजल्ट के ऊपर वाला सर। ये वाला हाँ सर, इसी का है। ये मतलब क्या? इसका हम लोग को लेना है फर्स्ट, जो हम लोग जो टेकन है फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, इसको सैंपल को लेंगे 100 ग्राम, फिर उसको हम लोग जो 90 माइक्रोन सीप से जो उसको हम लोग लिनियरली सो उसको जो मूव करेंगे तुम्हारा, तो उसका R हो जाएगा, जो उसका रेसिड्यू बचेगा, वेट ऑफ द रेसिड्यू, देन इसका परसेंटेज R upon W into 100, इसका एवरेज वैल्यू 90 समझ माइक्रोन गया जो सर। समझ गया ना। इट इज वेरी सिंपल, हाँ सर। ज्यादा हार्ड नहीं यस है, सर। इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट इज द वेट ऑफ द सैंपल with the weight of the residue, then you calculate the value of R upon W into 100, then average value। 3 हम लोग सैंपल ऐसे कंटिन्यूसली लेंगे, then उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, then you get the percentage।
ओके नाउ विद सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें। इसमें कोई दिक्कत है तुम लोग को? नो सर। ओके इसमें बहुत सर इसका सारे नोट्स मिल जाएगा? हाँ इसका नोट्स सेंड कर देंगे तुमको इसको। वो भी नोट्स तुम लोग को भेज देंगे जो हाँ सुबह सर। पढ़ा रहा था, जो तुम लोग को क्लास लेते हैं ना उसको तुम लोग को सेंड कर देंगे। आज ग्रुप में डाल देंगे ठीक है, इसको तुम लोग प्रिपेयर करना। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे विजिबल, और उसको जो सुबह डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में क्लास में वो तुम्हारा था दिस इज द वैल्यू। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सर हम लोग को आगे जाके सर आईएस कोड के लिए अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा क्या सर? आईएस कोड का तुम लोग बुक, एक बुक होगा हाँ सर। आईएस कोड। जो तुम लोग आरसीसी का डिजाइन करोगे ना, आरसीसी में स्टील में, तो वो सब में तुम्हारा होता है आईएस कोड यूज करना है। जब डिजाइन जो करना होता है उसमें आईएस कोड यूज होता है। तुम्हारा स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का उसमें भी तुमको आईएस कोड का जरूरत पड़ेगा। ठीक है तो सर आईएस कोड बताता है क्या, मतलब नहीं समझे आईएस सर ये कोड वाला। में तुम्हारा उसमें सारा डिटेल्स आईएस कोड में ही रहता है। जैसे बहुत सारा वैल्यू रहता है कि जो दिया नहीं रहता है, ठीक है, तो बहुत सारा वैल्यू हाँ। तुमको आईएस कोड से ही मिलेगा, तब तुम डिजाइन कर सकते हो एज पर आईएस कोड स्टैंडर्ड। इतना आईएस कोड जिसमें आईएस 4031 लिखा हुआ है ना, वैसे उसमें आईएस 2000 ऐसे ऐसे करके उसमें लिखा रहता है। देन उसको फॉलो करना है, देन यू फाइंड द वैल्यू, उसको वैल्यू को वहां यूज करके तुमको डिजाइन करना है। जैसे देखो इसमें हम लोग फाइनेस टेस्ट का कर रहे थे, तो फाइनेस टेस्ट रेस्ट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ सेटिंग डिहाइड्रेशन। स्यूब टेस्ट वही होता है जो देखो 90 माइक्रोन से स्यूब करते हैं। ओके तो इसमें तुम्हारा इन द ट्रस्ट 100 ग्राम सीमेंट सैंपल इज प्लेस्ड ओवर द आईएस स्यूब। ओके स्यूब इज डन until for the least 15 minutes along the breaking the air in sets lamps. The weight of residue left over the sieve of the noted, and for OPC weight is the residue retained over the sieve must not less than 10%, not exceed 10%, मतलब 0.1 वही दिखा रहा था। This is sieve test. इस IS स्टैंडर्ड कितना, इसमें कितना है, जैसे IS 4031 to 1996 यही है ना, तो हर का ये IS कोड है, हर चीज IS कोड में हो रहता है। Then air permeability test. Consistency section number 2, consistency test on cement. How to find a consistency test? This is the equipments. This is a Bicket apparatus. With the help of the Bicket apparatus, you find a consistency of cement. इस टाइप का तुम लोग कभी लैब में आओगे देखोगे, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट तुम लोग को देखने को मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ apparatus help and get the consistency of cement value. This is the scale indicator, with the rising pin. Okay, this is a front viewer, this is the cap. तुम लोग को फिजिकली जब कॉलेज फिर से बंद हो गया, तुम लोग का ना ओपन होने का हुआ था, नोटिस फिर बंद हो गया। यस सर। तो सर वो हाँ बोलो। सर वो फाइन सीमेंट के बारे में नहीं बताया सर। क्या फाइन सीमेंट? मतलब सबसे फाइन सीमेंट कौन सा रहता है? पीसीसी। हाँ ये जी क्वेश्चन से पूछा, बताओ फाइन सीमेंट। एक हम लोग का ग्रेड होता है 33, ठीक है, एंड इज 43, हाँ एंड इज थर्ड इज 53। मतलब सबसे वो ज्यादा ये फाइन सबसे कौन फाइन सा होता सीमेंट रहता है। है?
हाँ, ये सबसे ज्यादा फाइन कौन सा जो टच करेंगे और उसको टच करते सबसे ज्यादा फाइन कौन सा होगा? हम लोग को लगता है कि जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा फाइन होगा, यही लगता है ना हम लोग को। अगर साइज जितना ज्यादा, एक होता है सपोज देखो ये, एक होता है ईयर क्वालिटी, जब इंडेक्स हम लोग देखते हैं ईयर क्वालिटी AQI, तो उसमें एक होता है PM10 होता है ना। एयर क्वालिटी समझते हो तुम लोग? एयर क्वालिटी PM2.5 ये क्या है? तुम लोग केमिस्ट्री में 12th में पढ़े होंगे। पार्टिकुलर मैटर पर जानते हो? पार्टिकुलर मैटर नाम सुने हो? हाँ सर। तो PM10 हाँ का साइज क्या होता है? PM2.5 ये साइज है। PM10 में पार्टिकुलर मैटर का 10 है, वो साइज है। मतलब जो पार्टिकल्स जो ईयर में अवेलेबल रहता है ना, जो मूव करता है, जो हम लोग का अभी ईयर क्वालिटी जो AQI है, जो हम लोग का अभी जो धुंध ज्यादा विजिबिलिटी लो हो जाता है, वो किसके बिहाफ से होता है? वो होता है तुम्हारा पार्टिकुलर मैटर के बिहाफ से होता है, PM10 and 2.5। तब तो सर इससे तब सबसे ये 33 तब फाइन तब हो जाएगा सर। सबसे ज्यादा फाइन 33 होगा ना। तो इसको यूज तो हम पीसीसी में करेंगे ना सर? किसको? ये 33 जो सबसे फाइन है। हाँ 33 तो अभी यूज एज पर द कहाँ पे यूज होता है? 43 तो हम लोग जनरली OPC यूज होता है। OPC जो सीमेंट होता है वो होता है 43, अभी जनरली अभी 53 यूज हो रहा है। तो PPC होता है वो तुम्हारा 53 होता है। जो क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है ना, वो तुम्हारा 33 यूज होता है। ठीक है, ये सर। जो क्विक सेटिंग सीमेंट हो गया, फिर तुम्हारा जो पुट्टी में यूज करते हैं ना, वो सीमेंट का 33 हो गया, व्हाइट सीमेंट जिसको बोलते हैं। तो दिस टाइप तो सर सीमेंट इज देखते हैं 33, दिस इज बेस्ड ऑन डस्ट टाइप का आता है 33। और 53 तो जस्ट थोड़ा सर उससे हल्का फोर्स रहता है। तो सर देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में हम्म, कि मतलब ये पलस्तरा के लिए अलग और ढलाई के लिए अलग मतलब सीमेंट लाता है। नहीं, तो वो लोग अपना हाँ पैसा सर। बचाने के लिए करता है। हाँ देखो, सीमेंट होता है दो तीन टाइप का भी। कोई कंपनी सपोज अल्ट्राटेक हो गया, चाहे कोई SSC हो गया, तो आजकल बहुत टाइप का सीमेंट एक ही कंपनी बना रहा है। एक होता था नॉर्मल सीमेंट, ठीक है, हम्म। उसका प्राइस बहुत कम है, 300 रुपीज समथिंग या 290। एक होता है उससे ज्यादा, मतलब उससे थोड़ा सा सीमेंट का क्वालिटी गुड, मतलब प्रीमियम। एक होता है F2R, ऐसा बहुत सीमेंट ऐसा आ गया है। ठीक है, हम्म। तो तुम कौन सा सीमेंट को प्रीफर करोगे? चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट। तो यही चीज होता है कि देखो, जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो एकदम नॉर्मल सीमेंट है, एकदम प्लेन सीमेंट। थोड़ा F2R जैसे हो गया, कोई प्रीमियम हो गया, थोड़ा उसका क्वालिटी बेस्ट रहता है, उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ जो उसका जो मिक्सिंग है, वो प्रोपोर्शन थोड़ा अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है, किसी का प्रोपोर्शन ज्यादा है हम्म। नॉर्मल सीमेंट में, इसलिए लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल सीमेंट को प्रीफर करते हैं कहीं प्लास्टर पे, और कहीं ढलाई करना है जहाँ पे कास्टिंग का काम है, वहां पे थोड़ा प्रीमियम यूज करो। क्योंकि वो देखो, प्लास्टर तो नॉर्मल सीमेंट से ओके ठीक है, ठीक है, बट जो कास्टिंग का होता है वो उसको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए सीमेंट। ठीक है, तो इसलिए लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं कोई प्रीमियम, कोई F2R समथिंग, बहुत सारा टाइप्स का सीमेंट आ गया है। तो वो सब सीमेंट को यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मल सीमेंट में जो जो प्रोपोर्शन आता है नॉर्मल सारा कुछ जो मिक्सर है, बट जो तुम्हारा F2R हो गया, प्रीमियम हो गया, ये सब सीमेंट का थोड़ा क्वालिटी इज द गुड, उसका प्राइस ज्यादा रहता है। सीमेंट का क्या प्राइस है प्रीमियम का? शायद 600 कुछ है सर। नो नो नो, 400 समथिंग, 600 भी कोई सीमेंट का नहीं, 400 समथिंग है। और जो अच्छा को है सीमेंट प्रीमियम F2R इज 400 समथिंग, 410, कहीं 45, कहीं 400, ऐसे ऐसे करके हर स्टेट वाइज द वैरी करता है।
बट जो नॉर्मल सीमेंट एकदम प्लेन सीमेंट जिसको बोलते हैं, जो प्रीमियम नहीं है ना F2R है, तो 300 समथिंग मिलता है पर बैग। सर 300 में तो अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा सर। है। अभी तो अल्ट्राटेक का प्रीमियम का प्राइस हो गया, सब घट गया, 360 हो गया। एक अल्ट्राटेक सुपर सीमेंट आया, वो उसका आ गया 340 है, जो प्लेन है एकदम 300 है। सर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सब सारा सीमेंट में मिलता है सर ये? क्या लो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या मिलता है? कि जैसे कि अल्ट्राटेक वगैरह ये सब, जैसे कि सर सीमेंट का बहुत सारा हम लोग बात किए ना सुबह में, जैसे कि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसके बाद अभी जैसे बात की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये सब तो सबका अलग अलग काम होता है ना? हाँ, सबका अलग अलग काम है, सब सीमेंट का अलग अ, अलग अल, काम है। अ, तो जैसे कि हम बहुत जगह देखे हैं कि जैसे कि डैम वगैरह बनता है वहां भी अल्ट्राटेक सीमेंट चल रहा है, तो फिर हम कैसे पता देखो करेंगे कि नहीं तो इसमें देखो, मतलब? अल्ट्राटेक में भी बहुत सारा है एक्चुअली। अल्ट्राटेक सीमेंट वाली बनने की सिर्फ ओपीसी और पीपीसी नहीं बनाता है, और रैपिड भी सीमेंट बनाता है, क्विक सेटिंग सीमेंट भी बनाता है। तो हम लोग को क्विक सेटिंग सीमेंट कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ता है? सर हम लोग को उसमें सर रनिंग वाटर चाहिए सर, अंडर हाँ, वाटर में। जहाँ पे ब्रिज, जैसे अभी हमको नदी है, रिवर है, उसके अंदर हमको पिलर मतलब पियर बनाना है, तो उसके लिए हमको कुछ चीज चाहिए कि तुरंत किए, जैसे पानी मूव हो हट रहा है वहां से कुछ मशीन से, और उसको तुरंत कास्ट हो जाना चाहिए, तुरंत मतलब सेट हो जाना चाहिए। तो हर कंपनी अलग अलग सीमेंट बनाता है, मतलब हर कंपनी का बहुत सारा सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग, फिर से तुम्हारा पीपीसी, पीएससी, ओपीसी, सब सीमेंट बनाता है। बट जनरली हम लोग जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जैसे पानी में नहीं, नॉर्मली जो स्ट्रक्चर वो करते हैं, वर्क करते हैं, बिल्डिंग, सपोज तुम बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग के लिए हम लोग नॉर्मली ब्रिक वर्क, प्लास्टर के लिए नॉर्मल सीमेंट यूज कर सकते हैं। बट कास्टिंग ढलाई में तुमको प्रीफर करना, किसी को तुम सजेस्ट करना है तो बोला प्रीमियम यूज करे, इज अ वेरी गुड। उसका थोड़ा नॉर्मल से उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहता है, उसका सेटिंग भी अच्छा होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग पीपीसी यूज करते हैं, ठीक है। यस जैसे सर। पीपीसी तुम यूज कर रहे हो, तो उसमें एक होता है ना कि एक देता है वाटर प्रूफिंग मटेरियल देता है डालने के लिए, जिसमें रस्ट नहीं लगता है, बहुत ऐसा आ गया है ना मार्केट में केमिकल्स, जो एडमिक्सर के रूप में यूज करते हो। तो इसलिए उस जो सीमेंट वाला यूज करते हैं उसमें ये सब चीज, किसी को जो प्रेफर करना है तो हम लोग बोलेंगे कि ये यूज करो, दिस इज। सर और कितना देर चलेगा क्लास सर? एक और क्लास लेना था, एक और क्लास देखते हैं, कल उसको मैनेज करेंगे, कल लेंगे उसको लैब का। तो अभी जा सकते हैं सर? हाँ, जा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा, दिस इज 33, 43 एंड 53 सीमेंट। ओके, देन नाउ ये क्लियर हुआ तुम लोग का? तो देन यूज 90 माइक्रोन ट्यूब, यूज द हेल्प ऑफ द लेस देन 10%। हाँ सर क्लियर हो गया सर। ओके, ठीक है, इसको खत्म कर लेते हैं। Then next is the consistency test on cement. Then the help of this is the objective percentage of water by weighting of cement required to prepare standard acceptable cement paste. हम लोग कंसिस्टेंसी में देखो सीमेंट पेस्ट पहले इसको बनाते हैं, देन इसको हम लोग यूज इन द एक्सपेरिमेंट। This apparatus is the BKT apparatus. This is the IS code is a 5513 to 1998, and the weighting balance, gauging towel, measuring cylinder, and use the OPC and water. This is a material OPC cement and water.
Then procedure is a very important. How to perform this type of test. सर अभी हम लोग कॉलेज खुलने का कोई चांस तो है नहीं अब। अभी तो तुम लोग का नोटिस तो कैंसिल कर दिया गया जो ऑफलाइन खोलने का था। हाँ 17 तारीख को तो था। लैब अभी हम लोग का वही था कि लैब तुम लोग का आता तो लैब तुम लोग ऑफलाइन अच्छे से करा दिया जाता। हाँ लैब बिना ऑनलाइन का लैब पॉसिबिलिटीज नहीं अच्छा है लैब होना। ऑफलाइन लैब जो होता नहीं है होगा सर ऐसे। मतलब ऐसे पढ़ाने से कोई वो सर होता नहीं ही नहीं होगा। कि हाँ ऑनलाइन में कुछ नहीं होगा सर, पूरा ब्राइट एकदम, पूरा फ्यूचर एकदम ब्राइट दिख रहा है हम लोग का। हम लोग भी क्या हम लोग को पढ़ाना ही है। हाँ तो सर वो तो है, लैब का आप तो लोगों को तो पढ़ाना थ्योरी ही ठीक है, पड़ेगा। पार्ट थ्योरी पार्ट तो सही है कि हो जाता है, बट लैब का तो बहुत डिफिकल्ट है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में जी सर, जब तक सर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना सर तब तक कुछ कोई क्लियर मतलब नहीं होगा, इस सब नहीं में क्लियर कुछ होगा। फायदा नहीं है। इसलिए सिविल का दौर है। सपोज सीएस अदर ब्रांच को तो जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो तो ठीक है, बट सिविल में तो हाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग लिए हैं तो हमको उसमें विदाउट प्रैक्टिकल किए तुम समझ पाओगे। ऑनलाइन में तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि, तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हम लोग समझ रहे हैं। जी सर, और इंटर्नशिप भी अभी सुन रहे कि मतलब बहुत सारा कॉलेज का इंटर्नशिप ऑनलाइन ही हो रहा सर। इंटर्नशिप ऑनलाइन में क्या होगा, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तुमको ऐसे वही। ही इंटर्नशिप होगा। अगर तुम लोग बोलो इंटर्नशिप क्या करने का, क्या है इंटर्नशिप, बस वैसे ही करना है ऑनलाइन ही। तो ऑनलाइन इंटर्नशिप में कितना इंटरेक्शन होगा? कुछ नहीं सर, जब तक हाथ से नहीं कुछ करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं हो पाता है पॉसिबिलिटी सीखने का। सिविल विदाउट प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं। जी सर, चलो ठीक है। ठीक है सर, ओके, लीव कर दे क्या सर? हाँ हो जाए। जी सर।